someone like her noticing that, appreciating that, and conveying that to me was the first time ever someone in the industry had actually told me that in so many words, that you have become the hero of your films and a successful one. समय पहले तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म शाबाश मिठू बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। इस बीच वो अपनी अगली फिल्म के साथ फैंस के बीच एक बार फिर से आने के लिए तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उनकी अपकमिंग फिल्म दोबारा की। गत बृहस्पतिवार को महानगर में इस फिल्म का प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के दौरान तापसी पन्नू के अलावा एकता कपूर और पवेल गुलाटी भी मौजूद थे। पर फिल्म के ट्रेलर को भी दिखाया गया। ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि कैसे तापसी पन्नू का किरदार एक मर्डर के पीछे के रहस्य को सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह फिल्म तापसी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें उन्हें 12 साल के एक बच्चे की जान बचाने का दोबारा मौका मिलता है। बता दें कि यह स्पेनिश फिल्म मिराज का हिंदी रीमेक है। दिलचस्प बात तो यह है कि दोबारा में तापसी पावेल गुलाटी के साथ दोबारा स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आने वाली है। इससे पहले दोनों अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़ में साथ काम कर चुके हैं। तो आइए सुनते हैं मौके पर किसने क्या कहा। पहले तो ये बता, आप लोग सुबह खाते क्या जो इतने सुंदर लग रहे हो? खाने से थोड़ी ना नहीं खाती है वो। मैं बहुत खाती हूँ यार। I genuinely love to eat and I live to eat. ये उसी ऑर्डर में। I'm from Delhi, so I think it's very synonymous with just eating. हाँ, my day revolves around what I will eat through the day. क्या बात है यार। और सो एज वी नो कि ये मूवी कई सारे स्क्रीनिंग्स पे कई सारी जगह पे स्क्रीनिंग्स हो रही है, प्लस कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भी जा रही है। तो आप लोगों को क्या क्या रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, स्पेशली सर फ्रॉम यू एंड मैम फ्रॉम यू, व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज यू गाइस आर गेटिंग, व्हाट्स द बेस्ट रिस्पॉन्स टिल नाउ यू गॉट फ्रॉम ऑल द स्क्रीनिंग्स? We were just discussing अभी आने से पहले because the reviews have just started coming in. I've been really happy with all the reviews that are coming in. People have really liked the film. I'm really glad. It's my second film here, and that too with Taapsee. So I think I'm very lucky with Taapsee. So we are seeing them dobara on the movie Dobara. And ma'am, what are the reviews which you have got? I think my best compliment or the best line in the review that I've read so far because it's still coming in, is that this is the most gripping film of Anurag Kashyap. That I think that man has an amazing filmography, some cult films. No, I'm not saying every film has performed really well at the box office, but this film, for some reason, everybody is walking out and saying it is probably the most gripping Anurag Kashyap film, which is a huge compliment for him because he's out of his comfort zone. He has not ever touched such a science fiction subject. So he's out of his comfort zone. Actually, for a Hindi film, we are out of our comfort zone. Nobody dares to attempt such an experimental subject in Hindi cinema because everybody wants to play safe and everybody wants a commercial success. But I think it took a director like Anurag and producers like Sunir and Ekta who could dare to take this challenge and say, so what, maybe we will not succeed at box office, but we will make sure people will remember that we were the first ones to attempt something like this in Hindi cinema. I think I have lost track. मैं कितने बार आ चुकी हूँ, मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, मैंने काउंट करना बंद कर दिया। अच्छी चीज़ें वैसे भी काउंट नहीं करते। And also I have found some very, वो कहते हैं ना, एक समझ में नहीं आता रीजन व्हाई यू फील द कनेक्ट एंड लव फ्रॉम दिस सिटी, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई वर्क विद अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स फ्रॉम दिस सिटी. I don't know why. It's very early in my career from Pink onwards. Whenever I've come here, I have experienced so much of love and connect. So this is my third time in Kolkata. First time मैं क्लिक के लिए आया था, दूसरी बार मैं एक म्यूजिक वीडियो की शूट के लिए आया था. फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ना, इट वॉज वेरी कूल बिकॉज पूजो का टाइम था तब. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. मैं आई थिंक मैं कम से कम 4-5 पंडाल में गया था. It was, and the food I ate that time, I can still remember that. Like मेरा mouth would start watering now. But today also we had some rolls which were amazing.
You guys, मतलब this city has such great food, and like how Taapsee was saying, वो भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूँ, we are hardcore foodies, and I think this is the best place, and the people that we, like she was saying, even in the morning when we went to the college today, such wonderful energy and what a warm welcome, and so many people out there, and so many people out here today. Because it was not attempted till now. I always try. A lot of my films, I don't know if you people have seen a couple of my films, you probably might see the fact that what attracts me most is something that has not done before. So I want to present something new to the audience क्योंकि उनका टाइम और पैसा वर्थ होना चाहिए. मैं सप्तर्षि भारत मित्र अखबार से. मेरा सवाल है कि मंगलवार को मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी. हाँ सर, मंडे से हो रही है हाँ, एक्चुअली. तो काफी लोगों ने फिल्म को काफी सराहा. आपकी एक्टिंग की भी तारीफ हो रही है. एली अब्राम से लेकर रिद्धि डोगरा काफी प्रतिक्रिया जताई हैं. तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनरली इंडस्ट्री में हमारी माना जाता है जब पिक्चर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो काफ़ी दिनों पहले ही दिखा देना अगर मीडिया को, फ्रेंड्स को, इंडस्ट्री में लोगों को, तो मतलब समझ लो कि फ्रंट फुट पे खेलने को तैयार है प्रोड्यूसर. मतलब वी आर सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी हैव मेड, दैट वी हैव मेड अ गुड फिल्म. अभी हिट और फ्लॉप हैज अ लॉट ऑफ अदर रीजंस, not just how good the film is. Sometimes the really good films, cult films are box office failures. So उसके हिसाब से नहीं, but I think all of us were so sure that we have made a good film कि हमने मंडे से ही 15 अगस्त से ही ना पिक्चर दिखानी शुरू कर दी थी लोगों को बुला के from the industry to the media. The first ever screening was done for a selected group of media people that come and watch our film. Those were critics, and we were like, just you're open to talk about it. And from that day onwards, we have just been showing the film every day to the media people of different cities as well. We went to Chennai, we went to Delhi, now we have come here. And we are just showing the film. क्योंकि thriller है, हम आपको नाच गा के नहीं impress कर सकते. तो हमारे पास एक ही तरीका है, हमारी पिक्चर देख लो. वो हमारा सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना, the ace of spade that we have is our film. चूंकि ये थ्रिलर फिल्म है तो काफी अन्वेषण करना पड़ा होगा किरदार को तैयार करने के लिए. तो कुछ अगर खुलासा करें इस बारे में. एक्चुअली जब अनुराग कश्यप की फिल्म में काम करते हो ना तो कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनका तरीका काम करने का ये है, कम टोटली अनप्रिपेयर्ड, जस्ट सबमिट योरसेल्फ इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर एंड ही विल हेल्प यू गेट थ्रू. और मैंने एक्चुअली काफ़ी हद तक ये पिक्चर जब उन्होंने करी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री बात ये थी, मैं 2 बहुत मुश्किल फिल्मों के बीच में ये पिक्चर शूट कर रही थी जो मेरे लिए बहुत टैक्सिंग फिल्में थी, उसके बीच में मैंने ये पिक्चर शूट करी है. तो मेरे लिए रिलैक्सिंग पिक्चर थी एक्चुअली क्योंकि मुझे पता था मुझे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. अनुराग इज सो गुड एज अ डायरेक्टर फॉर एक्टर्स स्पेशली. आप उनकी कोई भी फिल्म देख लो, उसके वो पिक्चर आपको चाहे अच्छी या बुरी लगी हो, बट उसमें कोई भी एक्टर आपको बुरा काम करता नहीं दिखता. So I was sure कि मतलब I'm going to just submit myself in the hands of Anurag Kashyap. He'll make sure I look good on screen in terms of my performance. So I remember the first day when he came on set. Both me and Anurag sir have been big fans. So it was basically हमने हमारा shoot literally 45 minutes delay हो गया था because we were having fanboy moments. I was talking to him about कहानी and all of that. He's also such a fun guy. एंड ही लुक्स अ सर्टन वे, बहुत सीरियस लगता है पर बहुत ही फन लविंग और बहुत ही प्यारे आदमी हैं. तो आई थिंक हमारा उनकी वजह से शूट डिले हो गया था बिकॉज मी एंड अनुराग सर वाज सच बिग, हमारा फैन बॉय मोमेंट हो गया था बिकॉज वी डिडंट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस. ही हैड टू इंटरवीन एंड से कि चलो शूट कर लेता है थोड़ी देर, बहुत बातें हो गई. एक चीज बता दूं मैं, ये इसलिए नहीं है कि मी एंड अनुराग आर कोलैबोरेटिंग दोबारा या मी एंड बाघेल आर कोलैबोरेटिंग दोबारा, ये इसलिए नहीं है. ये दोनों जो मीनिंग्स हैं इसके, अगेन और 212 have a very strong connection with the storyline of the film, a very important plot point of the film. वो बता दिया तो काफ़ी चीज़ें रिवील हो जाएगी, बट बहुत इस पिक्चर में ना इसकी खासियत ही, इसकी सबसे बड़ी कमी बन सकती है कि आपने अगर एक मिनट को ध्यान से फुल फोकस से नहीं देखा तो आप शायद पिक्चर फॉलो नहीं कर पाओगे कि आगे क्या हो रहा है. वो इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, एट द सेम टाइम कैन बिकम अ वीकनेस ऑल्सो बिकॉज जनरली इंडियन ऑडियंसेस आर नॉट यूज्ड टू लाइक फोकसिंग 100%. बीच में पॉपकॉर्न भी चल रहा होता है, बीच में हम बाहर भी चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो सब नहीं हो पाएगा इस पिक्चर के अंदर. तो आई थिंक उसका बात का थोड़ा डर भी है बट वी आर ग्लैड ऑल्सो. एंड द लेंथ ऑफ द मूवी इज 2 hours 12 minutes as well, but that's got nothing to do with the plot point. Bothered नहीं है, वो bothered वाली स्टेज पार हो चुकी है. You know, एक
वो थी डायलॉग था मेरी कॉम का, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। पैंडेमिक हो गया, 2 साल हम लोग शूट नहीं कर पाए। ये पिक्चर हम लोगों ने सांड की आंख जब हम शूट कर रहे थे, जो अनुराग ने प्रोड्यूस करी थी और मैंने एक्ट किया था, उस समय से हमारा डिसाइडेड था ये मूवी करना। आप शायद अनाउंसमेंट भी पढ़ेंगे तो वो बहुत पहले की है, 2018 की कुछ अनाउंसमेंट है वो 2018 मार्च के अंदर डिसाइड हुआ था हम ये पिक्चर कर रहे हैं। 2018 की शायद नवंबर में जाके ये पिक्चर स्पेन में रिलीज हुई है। तो ये पिक्चर इंस्पायर्ड नहीं है, कॉपीड नहीं है। जिस तरह से एक डायरेक्टर एक राइटर से स्क्रिप्ट लेता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, मनमर्जियाँ अनुराग ने कॉपी नहीं करी थी, इंस्पायर नहीं करी थी, उसने लिखी नहीं थी। उसने कनिका की स्क्रिप्ट ली और पिक्चर बनाई। इसी तरीके से इस पिक्चर के लिए हमने ओरियोल पॉलो की स्क्रिप्ट ली और अनुराग ने पिक्चर बनाई। अब बाकी आपकी जजमेंट है। सर आप जर्नलिज्म में है, फिल्म जर्नलिज्म में, आपको ये बात पता होना चाहिए। एक नोटिस इशू हुआ था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कुछ हफ्ते पहले, जिसमें लिखा गया था 1 अगस्त से सारी शूटिंग रद्द करी जाएगी क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए बजटिंग के अंदर, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आर इन लॉसेस। और आप हम जो नॉर्थ में बैठ के हम बोलते हैं नॉर्थ और बोलते हैं साउथ, वो साउथ नहीं है, वो 4 या 5 स्टेट्स हैं जिसमें 4 फिल्म इंडस्ट्रीज हैं। वो साउथ फिल्म्स नहीं है, वो तेलुगु फिल्म है, तमिल फिल्म है, कन्नड़ा फिल्म है, मलयालम फिल्म है। वहाँ पे अगर आप सक्सेस देख रहे हैं, RRR तेलुगु फिल्म थी, पुष्पा तेलुगु फिल्म थी, तो 2 फिल्म हो गई तेलुगु की। और कौन सी KGF कन्नड़ा फिल्म थी। हमारे यहाँ पे कितनी हिट हुई हैं हिंदी में? अगर कंपेयर करना है तो आप पूरा साउथ साथ में नहीं करेंगे, वो इंडिविजुअल एंटिटीज है उनकी, वो आप सारे साउथ एक अम्ब्रेला के अंदर नहीं आ जाता। ऐसे तो फिर साउथ वाले बोलेंगे नॉर्थ फिल्म में, उसके अंदर बंगाली भी आ जाएगा, हिंदी भी आ जाएगा, पंजाबी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो फिल्म जर्नलिस्ट से हम थोड़ा सा बेटर सवाल एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ी सी बेटर रिसर्च एक्सपेक्ट करते हैं। सिर्फ सेंसेशनल हेडलाइंस के लिए कृपया क्वेश्चंस ना पूछिए। मुझे बोला था जब हमने दोबारा का पहला एडिट देखा था और बड़ा घमासान लड़ाई हुई थी मेरे अनुराग के बीच में, उनके घर में देखा था हमने एडिट, और मैंने बोला था कि इसमें ये नहीं सही लग रहा, मुझे वो नहीं सही लग रहा, और हम दोनों ने बहुत लड़ाई करी थी, जो हम यूजुअली करते हैं फिल्म मेकिंग के दौरान, तो हम बहुत लड़ते हैं। तो उस टाइम उसने गुस्से में मुझे बोला था अगर स्टार बनना है तो मेरे साथ क्यों पिक्चर करती है, रोहित शेट्टी के साथ किया कर। मैंने कहा हाँ दे रहा है काम तो करती हूँ, अब वो दे ही नहीं रहे हैं काम तो क्या करूँ, अनुराग कश्यप के साथ करना पड़ रहा है काम मुझे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रैवल का, पैरेलल यूनिवर्स का, वो नया था, वो किसी ने किया नहीं था। अब मैं लकी हूँ कि जो कहानी है एक लड़की के थ्रू बताई जा रही है, तो आई जस्ट गॉट लकी के फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट की बेसिस पे मैंने ये पिक्चर हाँ करी थी, कैरेक्टर नहीं देख के हाँ किया था। थप्पड़ में ये मेरी दोस्त बनी और दोबारा में दोस्ती बहुत गहरी हो गई। मेरे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थप्पड़ ऑब्वियसली मेरी पहली पिक्चर है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर Yeah, I don't have any predictions, to be honest. I am nobody to give predictions because I'm just 2 films old. Actually 1 film old. Kal I'll be 2 films old. I genuinely hope that these kind of films, this film does well because I am genuinely a fan of sci-fi. Right? I am such a nerd when it comes to sci-fi कि मैं गंदी से गंदी sci-fi films देखता हूँ और मुझे मजा आता है. And I really want to be part of more sci-fi films, तो हमने बहुत अच्छी बनाई है. So I want that this kind of cinema should go further. People should make more stuff like this. तापसी को भी सुपर हीरो बनना है, उसको कैप्टन मार्वल बनना है, तो हम अगर these things do well, we'll be able to make more films like these. मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ, ये फिल्म अच्छा ये करेगी, आपको दिमाग यूज करवाएगी। यूजली बोला जाता है दिमाग बाहर रख के आइए थिएटर में, मजे कीजिए। शायद ये पिक्चर आपको सिखाएगी कि पिक्चर देखने के लिए दिमाग को भी लेके जाना बहुत जरूरी है। I come to Calcutta, ये of course लॉकडाउन के बाद पहली बार है, but I used to come to Calcutta at least 3 times a year because I go to Kalighat and I have shot almost 20 outdoors here. एकता दिस साइड सप्तर्षि, मैं भारत में दरबार से हूँ। इस तरह की चैलेंजिंग फिल्में बनाना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, तो आर यू हैप्पी बाय द वे द फिल्म हैज़ बीन शेप्ड अप, क्योंकि काफ़ी कम बजट में भी बनी है ये फिल्म? मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है आसान चीज़ों से, बिकॉज एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन मैंने पढ़ी थी एक बार कि डूइंग बिजनेस इज लाइक कैचिंग अ रनिंग बस।
you may fall off, but if you stand there, you won't know where you will get. So this was like catching a running bus. I had to jump on it. I had to take the risk. And however tough it is, it's a fun experience to see interestingly, smartly budgeted film. From the actors to everyone cooperated, decided to make something and piece of cinema. I think there's nothing bigger than passion, and I think this film fulfills my passion. और तापसी को लेने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये आप मुझे पूछे, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं इनकी कितनी बड़ी फैन हूँ। इनकी फिल्म थप्पड़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार, मैंने इनको 3-4 फिल्में इसके पहले भी ऑफर की थी, उन्होंने ना कर दिया। बहुत स्वीटली ऑफिस आई, सुना और फिर ना कर दिया। और इनकी मैं इतनी, थप्पड़ मेरी फेवरेट फिल्म है। मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ कि ऐसी फिल्में अगर नहीं बनेंगी ना, कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे लाइफ में। I think both Pavel and Tapsi, आपको पता है, it's my favorite film. I came out of the theatre and I was like mind blown. I was like, I have had friends who had meltdowns seeing Tapsi's performance. I told her this. There's one thing that she told me. I remember I mentioned it a couple of interviews also before कि जब मुझसे पूछते हैं ना लोग कि when did you feel that you arrived और ये इस तरह के सवाल के आप protagonist वाले, तो एक I remember meeting Ekta first time in her office. And she said, and शायद 2-4 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, and she's like, we have to work together. I've been noticing the films that you're doing, and I think it's time we should collaborate. I was like, okay, like coming from her, that it really feels like you've arrived. She's like, I know you're keeping it under the radar because it's not looking like, you know, you are out there on the top of the terrace shouting कि भाई अब मैं hero बन चुकी हूँ types. But I've been noticing. So a person who is behind the camera, who keeps the track of numbers, who knows the business, someone like her, noticing that, appreciating that, and conveying that to me was the first time ever someone in the industry had actually told me that in so many words that you have become the hero of your films and a successful one. That was first for me, which I will always remember, and coincidentally it came from a woman. That also will be memorable. So at that time I knew that we will collaborate for some of the best films that we can make together, because she really noticed something that most of the industry didn't at that time. So that is quite a memorable compliment that I'll remember always. शूटिंग के दौरान कोई यादगार लम्हों को अगर आप साझा करना चाहेंगी? ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हटा देना चाहिए सबसे जो पूछा जाता है। यादगार लम्हे, पिक्चर बन गई हमारे लिए बहुत यादगार बात है भाई। आजकल पिक्चर बनाना पता है आपको कितनी मुश्किल बात है। सही बात। वो खत्म हो गई सक्सेसफुली, पिक्चर रिलीज हो रही है, वो भी मुश्किल बात है आजकल। तो यही बहुत यादगार है कि पिक्चर बन गई, अच्छी बनी और रिलीज भी हो रही है। वाह। So, बस यही यादगार है मेरे लिए। कि अपनी किस्मत होती है, और तुषार मेरे से कहीं बड़ा स्टार है। वो इस देश का सबसे बेस्ट बाप है, वो एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग है, और प्लीज यार इंसानों को सिर्फ उनके बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस से कंपेयर करना बंद कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताज़ा समाचार।